So in last class, I have told you about some questions and about interference related things and some questions which I've given you last to last lecture. This question I've given you. Let's start this question. The first part is about the proof and all. So I think that is the easy part, maybe. Hmm. So let's do it. So they are saying let BP naught minus AP naught is equal to lambda by 3. So then we have to prove this relation. Okay. So as we Yeah. can see clearly, I think they didn't mention the point A. I can assume this point must be A. Okay. Yeah. Hmm. So for the point A, the light ray reached to P point by distance traveling D. Okay. And Yeah. from B, it will be root of D square plus capital D square. Okay. Yeah. So if I talk about BP naught minus AP naught, that is given in the question is lambda by 3. And by geometry, I'm going to put the value of BP naught, that is a D square plus capital D square minus capital D is equal to lambda by 3. Here they have told about that capital D is very, very greater than lambda. Okay. Hmm. So, and the D is also, D is comparable to lambda. So D is also less than capital D. Okay. So we have to apply binomial theorem here by taking out first capital D square. We have to take it out. So they will be D हमारा उस रूट से बाहर आ जाएगा and the inside बन जाएगा 1 plus D square upon capital D square the whole power half minus capital D is equal to lambda by 3. Okay. Now take the binomial expansion 1 plus 1 by 2 D square upon capital D square bracket minus D is equal to lambda by 3. You getting this? Okay. Now multiply with this D in the whole equation. Then you will get, I'm solving here. So D will cancel out. So 1 half D square upon capital D is equal to lambda by 3 will be there. So so D will become 2 lambda capital D upon 3. This is the expression Yeah. for this. I think you have done in the same way, maybe. Huh? But I do not use binomial theorem. Okay, what you have used, you have done the whole of square, but you have considered that lambda square is tends to 0, I think, huh? Hmm. So that is like you have used approximation, and in the binomial, Hmm. we actually use by approximation. Hmm. So in that way, it is similar, like, okay. The second part they are saying, they show that intensity at T point. T naught point, the intensity is 3 times the intensity due to any of the 3 slits individually. So basically, there are 3 sources of light which have same intensity. Let's say I can assume I naught. Each source have intensity I naught, so we need to prove that intensity at P naught is a 3 I naught. Okay. So technically, Okay. we need to find the intensity at P naught. Hmm. Okay. Yeah. So how we will find? Okay. Let's do that. So basically, first we will solve for 2 sources, A and B first. Okay. So if I solve for A and B, okay. So I'm solving for A and B. So what will be the delta x for A and B? So it will be root of D square plus D square minus D. Okay. And I think we have already solved this here. है ना? Yeah, it's given. Yeah. That is given lambda by 3. So part difference between A and B is lambda by 3 itself. Yeah. And if the part difference is lambda by 3, then phase difference become delta phi, I can say 2 pi by 3. 2 pi by 3. Got it. This is the phase difference between first 2 sources. Okay. One more thing I need to tell you that the source have
The individual each source have intensity I naught, so I can assume that each source has amplitude as A naught. Okay. Yeah. So now I'm going to apply vector method to get the resultant. So first I can say that the A is like this way. I can write amplitude A naught, and the B has a angle 2 pi by 3. So it can be shown like this way. And it has also magnitude as A naught. This angle is 2 pi by 2. In degree, it will be 240 degree. Okay. Yeah. So uh, if you want, we can solve it here itself that how much will become. Okay. Okay. We have to solve, but I will do that later. First, I will find the part difference between other two, B and C. Okay. Hmm. So what is the part difference B and C if we want to solve it? So for B and C, if I solve, so it will be like delta x is equal to CP naught minus BP naught. Okay. So CB naught can be written as root of this will be hypotenuse, like, okay. Yeah. So it will be like 4 small d square plus capital D square minus BP naught is like root of small d square plus capital D square. So we can take common capital D in all of them. So what we'll have now? 1 plus 4d square upon capital D square. Wait a minute, let me write 4 first. 4d square upon capital D square whole power half minus 1 plus d square upon capital D square whole power half. Okay. Yeah. So we can now apply binomial theorem again. Okay. Okay. So if you apply binomial theorem, the first part, what you will get, this power comes multiply with this portion. So Yeah. you can see that 1 by 2 is there. That 4 and 2 will cancel out. So you will have 1 plus 2d square upon capital D square. Okay. And the Yeah. later one is minus 1 minus 1 by 2 d square upon capital D square. Is it correct? So we can Yeah. cancel out the 1 and 1. And the value of, wait a minute, let me check it first. There is half. Okay. So if there is half, when we'll subtract, what we'll get? We will get 3. 3D square. Mhm. We will get 3 by 2 d square. And what is the value of d? We have find it here itself. Hmm. Okay. So, and there is a square, so it's 2 lambda d upon 3. Okay. Yeah. So what here comes, if we solve, 2 and 2 will cancel out, 3 and 3 will cancel out. Hmm. Hmm? Yeah. And wait a minute, let me. Okay, wait a minute. In denominator, there is a d square that I missed out. We can cancel out capital D and capital D, and this capital D will cancel from here. So what will be there? We got lambda. Hmm. So part difference between A naught and sorry, A naught means B and B and C. C is lambda. First, we need to check it first. Is it all thing which I've written here is correct or not? Let me check it first. Mm, Okay, it's looking correct way, I think. Hmm. So Hmm. part difference becomes lambda. So delta phi will be 2 pi by lambda, I think. 2 pi by lambda into lambda will be 2 pi. Yeah. So phase difference between I think B and C is 2 pi.
So I can say that the C amplitude of C source of light is over the A naught. Am I right? Yeah. So what we have now that here two vectors, two A naught and here Hmm. A naught. So we need to Yeah. find the resultant of these vectors. So the resultant of amplitude if we find, here resultant if we find, what will we write? Like 2 A naught square, it will become 4 A naught square plus A naught square minus, sorry, not minus, plus 2 into 4 A naught into A naught cos 2 pi by 3. Am I right? Yeah. So what is the value of cos 2 pi by 3? It will be minus of half. Minus. Yeah. So 2 and 2 will cancel out, I think so. Okay. Yeah. So minus sign will come there. So what answer become? 4 A naught square plus A naught square minus 4 A naught square. Huh? Correct? Hmm? Hmm. Hmm. It become A naught square, I think. Huh? A naught. Okay. So resultant of this A naught comes. Maybe it is somewhere because they have said prove that 3 A naught. Our answer is coming A resultant A naught. So definitely we have done somewhere. Check it first. Is it any calculation mistake is there for B and C? What we did? B the path of Yeah. B In is the last, it's mhm. like 2A naught into A naught, not 4A naught into A naught. Okay. That is mistakenly gone. 2A naught. So it is there 2A naught. Okay. Now 5A naught minus a 2A naught square will be, so it will become root 3A naught. Okay. Hmm. And we know that the intensity is proportional to Amplitude amplitude square. square. Got it. So it will be 3A naught square. And for the one source, you can write I naught proportional to A naught square. If you divide both of them, you will get I resultant is equal to 3 I naught. Okay. Yeah. So here is the answer. Okay. So this is a good Hmm. question. And and second, this is a question which can give you more conceptual clarity. Let's say if there are four sources of light, then you can also solve like this method way. Okay. You will find, Yeah. let's say there is a D source also. Okay. So you can solve by this way. Okay. And one more method is there to solve for the intensity part. Okay. But Okay. that is related to the YDC experiment data. Okay. So Hmm. for now, we can't use it. First, I will tell you that part, then you can get the that method. Okay. So let me start Yeah. YDSC experiment. Yeah. Basically, there is a source of light. I can say monochromatic light. Monochromatic light. And from here, this single source become two source of light. Okay. And these sources are interfere on the screen at different points. So for the different points, they have different part differences. For different part difference, they have different intensity. They have different value of intensities. So the one which have bright spot called is maxima, and one which have dark point is called minima. Okay, and each minima is in between two consecutive maxima. Either you can say each maxima is in between two consecutive minima. Minimas. Yeah. Got it? Okay. So here's the diagram, which is the wavefront method. I can. It's a. I. It's a. There is a parallel source of light is coming like this way.
light enters from here and it bend it like this. Light becomes like diverging. Light becomes Yeah. diverged. Mm. Wavefronts become spherical wavefronts. Okay, and again they fall. This wavefront fall on this slits. Okay, so these points again become a new source of light. So they provide individual uh, source. They become individual source of light. So they superimpose somewhere here, and we got it. The Mm. pattern, which we call फ्रिंज पैटर्न. ओके, Yeah. इसको हम लोग फ्रिंज पैटर्न बोलते हैं. ठीक है, दो टू डायमेंशनली हमको दिखता है कि एक सफेद स्ट्रिप है, एक फिर डार्क स्ट्रिप है, फिर सफेद स्ट्रिप है, फिर डार्क स्ट्रिप है. सफेद स्ट्रिप इन द सेंस ब्राइट वाला पार्ट. हाँ, सफेद मतलब व्हाइट कलर नहीं है. ठीक Mm. है, इट्स लाइक ब्राइट. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड पाथ डिफरेंस फॉर डेटा पॉइंट ऑफ व्यू समथिंग्स. ठीक है, पढ़ा होगा आप लोग अपने स्कूल में. ठीक है, तो मैथमेटिकली कुछ प्रोसेस कर लेते हैं. बेसिकली यहाँ पर एक बात आपको थोड़ा सा बताना है कि आपने ऐसे ऊपर भी डायग्राम में देखा होगा कि एक सिंगल सोर्स से दो सोर्स बनाए गए हैं. ठीक है, हाँ. क्योंकि इन लाइट टॉपिक दो सेम सोर्स ऑफ लाइट या दो कोरेंट सोर्सेस बनाना, बनाना इन द सेंस, सॉरी, दो डिफरेंट सोर्स कोरेंट सोर्स हो जाएं, ये बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. इसीलिए ही सिंगल सोर्स से हम दो सोर्स बनाते हैं, एंड वो जो दोनों सोर्सेस हैं उन वो कोरेंट होंगे, दे मस्ट बी कोरेंट. Okay. ठीक है. Mm. हाँ. अच्छा, साउंड में ऐसा नहीं है. साउंड में इज लाइक दैट कि क्योंकि लाइट की अपनी प्रॉपर्टीज है, साउंड की अपनी प्रॉपर्टीज है. साउंड में दो डिफरेंट सोर्सेस कैन बी कोरेंट. ओके, Yeah. बट इन लाइट टॉपिक इट इज नॉट पॉसिबल. Okay. क्योंकि आपको याद होगा, अगर आपने इंटरफेरेंस 11th में पढ़ा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं बताया होगा कि एक सोर्स से दो सोर्स बनाए हैं, है ना. दे सेड सिंपली कि दो सोर्सेज Mm. हैं. हम्म, हाँ. Mm. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्क्रीन ले ली. ये हमारा स्क्रीन हो गया बेटा. एंड स्क्रीन में दिस पॉइंट इज टेकन एज ओ, या सी भी बोल सकते हो. एंड Okay. ये सेंट्रल पॉइंट कहलाता है. ठीक है, और ये सोर्स जो S1 S2 हैं, S2 S1 S2 दो सोर्सेस हैं बेटा. ये बने कैसे हैं, तो ये बने हैं एक सिंगल सोर्स से, जो यहाँ पे रखा हुआ है S. तो ये ऐसे रखा हुआ है कि इसका डिस्टेंस S1 से और S2 से सिमिलर. ठीक है. Okay. Mm. हाँ, बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ऐसा एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है. In the question, this source can be placed anywhere. But in the YDSE experiment process, they place the source such that कि before the slits के पहले जो पाथ का लेंथ हो S1 S2 के लिए, वो सेम आ जाए. ओके, Okay. Mm. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yeah. ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग द लाइट फ्रॉम द S1 S2. मैंने एक यहाँ पे लाइट ली S1 से और एक ले ली S2 से. And one line I've drawn from the center point. So again, the screen distance is capital D. It is capital D. This angle is theta. Slits, the gap between slits is small d. And these all, अच्छा, जो center line है, it is not light ray, it is just a line. बाकी जो ये हैं, ये आपके लाइट रेज हैं एक तरीके से. ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके सुपर इम्पोज कर रहे हैं. Again, small d is very, very less than capital D. So these line become almost parallel.
Okay. Okay. Yeah. But if they are not parallel, then we have to solve it like mathematical way, which I have shown here. Okay, ऐसे कर सकते हैं हम. ठीक है. ठीक है. तो अब अगर हम बात करें बेटा कि what is the path difference between these two lights which are reaching to point P? So first we need to draw a perpendicular from here to the S2. You can see that S2 is that much more than S1P. S2P is more than S1P by this value. So this is actually part difference. Hmm. Okay. Okay. And by the geometry, you can see that this angle also theta. So from you can see the delta x is equal to d sine theta. Okay. Yeah. Because this is d, this is like hypotenuse. For this angle theta, हाँ. this is like perpendicular. Hmm. Are you getting this? How we get this theta and theta similar? Should I tell you? Either you got it. Yeah, I got it. Good. So delta x is equal to d sine theta. And one more thing in the diagram, I can show you that the distance from the O point, which is central point, to the P point. P point is general point. Is I can show it like y. It can Okay. be it can be represented as y. Okay. So d sine theta is equal to uh, wait a minute. Hmm. Here sine theta can be written as अगेन देखो और सारे जो चीजें हम कर रहे हैं ये अप्रोक्सीमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि जब एंगल बहुत छोटा है कैपिटल डी बहुत बड़ा है आइदर अब क्या करना होगा प्रॉपर ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी लेकिन वाईडीएसी सेटअप का जो एक्सपेरिमेंट है वो अप्रोक्सीमेशन पे ही है. ठीक Okay. है. हाँ. अब पॉइंट यहाँ पर है कि एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा और टैन थीटा इज ऑलमोस्ट सेम बेसिकली. ठीक है. हाँ. तो सिमिलर बोल सकते हैं तो इस हिसाब से अगर देखोगे आप तो दिस बिकम वाई अपॉन कैपिटल डी फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल. इज इट लुकिंग फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल वाई अपॉन कैपिटल Yeah. डी. Yeah. ठीक है. हाँ. सो वी कैन राइट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल डी. डन. Hmm. So y is what y become d by small d into delta x, and delta x is the path difference for the point P. Yeah. Now मैं एक बार यहाँ पे वापस से भी देता हूँ y is equal to कैपिटल D upon small d into delta x. अब यहाँ पे लेट्स से आपको मैक्सिमा की पोजीशंस निकालने हैं. For the maxima point, you know that delta x will be n lambda. Yes or not? Yes. करेक्ट. वेरी गुड. तो यहाँ पे आपका बन जाएगा बेटा n lambda d by d. तो if you put the value of n like 0, 1, 2, 3, you will get uh, different position for the maximas. Like first one is the 0, that is itself central point. Okay. Hmm. 0. The second one is lambda d by d. Third one is 2 lambda d by d. Okay. Now, if I talk about minima, and I should write also here. ये इसको हम कहते हैं बेटा मैक्सिमा. मैक्सिमा बोलते हैं. ठीक है बेटा. हाँ. कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं. ठीक. और एक और कहते हाँ. हैं ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं. ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं. ये सारे नाम इसी से बिलोंग करते हैं. तो जैसे 0 वाला जो है पोजीशन ये सेंट्रल मैक्सिमा का है बेटा. इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा. इसको क्या कहते हैं बेटा इसको बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा. ठीक है. हाँ. इसको बोलते हैं बेटा सेकंड मैक्सिमा एंड शो ऑन आई कैन से.
एंड फॉर द मिनिमा अगर आई कैन से, मिनिमा के लिए क्या होगा? मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। 2n - 1 λ/2। मी मिनिमा, मिनिमा सही है। और ये डिस्ट्रक्टिव, और यहाँ पे डार्क। तो इसके लिए पार्ट डिफरेंस हमको पता है 2n माइनस, क्या बताया तुमने? 2n+1, 2n-1, 2n-1। -1। तो मैंने ये भी बोला था कि 2n+1 λ/2 भी होता है, और मैं 2n-1 हाँ। λ/2 लेता हूँ। क्यों लेता हूँ, आई विल टेल यू लेटर। तो शायद अभी वो ओके। आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम्म। से डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर आप वाई की वैल्यू पुट करेंगे, जो यहाँ पे मेंशन है ऊपर, यहाँ पे बेटा, तो क्या मिलेगा आपको? λ/d 2n-1/2d। अब मैं यहाँ पे n की वैल्यू रखूंगा 1, 2, 3 डैशेस। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिलेगी पहली, अ, अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूंगा तो ये मिलेगा आपको λ/d/2d। एंड सेकेंड वन यू विल गेट λ/3 λ/d/2d। हम्म। एंड द फोर्थ वन इज 5 λ/d/2d। ओके, as shown. या। So this is called as first minima। इसको बेटा हम फर्स्ट मिनिमा कहते हैं, इसको हम लोग सेकेंड मिनिमा कहते हैं, इसको हम लोग थर्ड मिनिमा कहते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है। अब यहाँ हाँ। पे रीजन ये है कि 2n-1 λ/2 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे सेंट्रल के बाद जो भी पॉइंट आएगा, ब्राइट डार्क वॉट एवर, वो पहला काउंट होगा। तो एक्चुअली में मिनिमा जीरो ऐसे वाई, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो n0 पे हमें y0 मिला, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा बन गया। ठीक है। बट हम्म। मिनिमम में सेंट्रल नाम का कुछ होता नहीं है कि सेंट्रल मिनिमा हो। ओके। ओके। इसलिए मिनिमा में हमेशा काउंटिंग स्टार्ट ही होती है फर्स्ट मिनिमा से। मैक्सिमा में देख रहे हो आपकी स्टार्ट हो रहा है सेंट्रल से, देन फर्स्ट सेकंड जा रहा है। बट यहाँ मिनिमा में फर्स्ट मिनिमा से स्टार्ट होता है। तो मैंने बस उसको रिलेटेड करने के लिए यहाँ पे एन की वैल्यू वैसी ही मिल जाए हमको। नहीं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर एन की वैल्यू हम रख रहे हैं 0, तो हम इसको फर्स्ट क्यों बोल रहे हैं, है ना, होता है ना ऐसा ओके। कंफ्यूजन। हाँ तो हाँ। अब यहाँ पे 2n-1 λ/2 ले लिया हमने, तुमको पता है कि एन की वैल्यू में 1 2 3 रखनी है। 1 2 3, 1 पे हमको फर्स्ट मिनिमा, 2 पे सेकंड मिनिमा, थर्ड पे थर्ड मिनिमा, खत्म बात। ठीक है। हाँ। कुछ प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लो, हाँ। हम्म। ठीक है। अब इसके बाद हम्म, अच्छा, ये जो जितने भी डेल्टा एक्स एन लेमडा वैल्यूज रखेंगे, यानी 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, इन पे जो इंटेंसिटी मिलेगी वो हमको मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है। ओके। हाँ। अच्छा, एक और ओके। चीज है। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डन दिस, हम लोगों ने ये पार्ट किया था, यहाँ तक किया था, है ना। तो हाँ। एक बार एक काम करते हैं, ब्राइट स्पॉट की जो इंटेंसिटी होती है वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो सॉल्व किया है वो ये मान के सॉल्व किया है कि दोनों कोरेंट सोर्स की इंटेंसिटी सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हो। तो फिलहाल हमें, अब मैं बात करता हूँ कि लेट से अगर हम कहते हैं दोनों सोर्स ऑफ दोनों सोर्स ऑफ लाइट की इंटेंसिटी सेम है, जैसे कि मैंने ऊपर देखा कि वो दोनों सेम ही से बन रहे हैं। तो I1 = I2 = I0। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है आई रिजल्टेंट का, I1 + I2, तो ये बन जाएगा I0 + I0 +2 I0² √I0 आता है ना बेटा, √I1 √I2, I0 ही बचेगा सिर्फ, आई थिंक, हाँ। cos⁻∆φ। तो यहाँ से अगर देखोगे तो 2I0 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 + cos⁻∆φ। और cos⁻∆φ में हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, सर जेड के 1 कैंसिल हो जाए, तो फॉर्मूला लगेगा हमारा 2 cos² ∆φ/2 -1, तो -1 +1 कट जाएगा। एंड फाइनली व्हाट यू हैव एज रिजल्टेंट पार्ट, दैट इज इक्वल टू 4I0 cos² ∆φ/2। ओके। ओके। तो जैसे कि हमको पता है कि पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अगर एन लेमडा रख दोगे
तो डेल्टा फाई कितना आएगा बेटा? हम्म डेल्टा फाई कितना आएगा? या छोड़ो, वैसे देखो, अगर ऐसा हो जाएगा समझना, तो हाँ। मैक्सिमम मैक्सिमा के लिए हमको पता है कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू का वैल्यू क्या होना चाहिए, +-1 कर दें क्या? ओके। स्क्वायर है, या ऐसे बोले कॉस डेल्टा फाइव बाई टू की वैल्यू +-1 कर दो, ठीक है? ठीक है। तो मैक्सिमा मिल जाएगा। तो मैक्सिमा की हाँ। जो इंटेंसिटी आ रही है बेटा, वो आ रही है कितनी? 4I0। और मिनिमा के लिए अगर सॉल्व करा जाएगा बेटा, ठीक है, तो हम्म। कॉस डेल्टा फाइव बाई टू का जो वैल्यू है वो हमें 0 कर देना होगा। तो जो मिनिमा आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 0। ठीक है। तो याद रखना, ओके। जब दोनों सोर्स का इंटेंसिटी सेम होता है, ठीक है, तो मिनिमा हम्म। में तुम्हें डार्क स्पॉट मिलेगा। क्या मिलेगा? डार्क स्पॉट। डार्क स्पॉट। और वाईडीएसई जो एक्सपेरिमेंट है, उसमें एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाए गए हैं। स्लिट में जो काइंड ऑफ कट मारा गया है, उसकी थिकनेस दोनों S1 S2 में सेम है, इसलिए I1 I0 दोनों सेम है। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर बेटा, एकदम बढ़िया से? हाँ। ओके। एक मैं आपको वो दिखाता हूँ, वेट अ मिनट, ग्राफ काइंड ऑफ, लेट मी सी। इज इट अवेलेबल टू यू? या। ओके। तो ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये इंटेंसिटी वर्सेस मैंने पावर डिफरेंस का ग्राफ दिखाया है तुम्हें। ठीक है। इसमें आपको देखो, एक दिख रहा होगा मैक्सिमा, एक दिख रहा होगा मिनिमा। ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें हम्म। यहाँ पे, एक और साइड में बना दें कि लेट से I1 और I2 सेम है और ये I0 के बराबर है, तो यहाँ पर आई मैक्सिमा तुम्हारा बन जाएगा 4I0, आई एवरेज तुम्हारा बन जाएगा 2I0, और आई मिनिमा बन जाएगा 0। क्लियर है? हाँ। अच्छा। और तब जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ, फिलहाल आप ध्यान से देखो तो ग्राफ में यहाँ पे दिस पॉइंट शोज 0 इंटेंसिटी पॉइंट। ओके। ओके। एंड बट फिलहाल ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर बना रखा है, मिनिमा के लिए देखो 0 नहीं करा है, कुछ कुछ वैल्यू है यहाँ पे ना बेटा। हम्म। तब क्या होगा, ये ग्राफ पूरा का पूरा क्या होगा, नीचे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है। ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इस ग्राफ को सेपरेटली ड्रॉ कर सकता हूँ। वेट अ मिनट। नाउ यू कैन सी, अगर मैं एक काम करता हूँ, अपने इस डेटा को कॉपी यहाँ से यहाँ पे कर लेते हैं। sorry। नाउ क्लियर? या। ओके, गुड। तो ये ग्राफ तब, ये जो ग्राफ है तब एप्लीकेबल हो जाएगा जब I1 I2 सेम नहीं है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ कि मैंने, ये ग्राफ तब के लिए है जब I1 I2 आर नॉट इक्वल। ठीक है बेटा। ओके। दिस इज I1 डज नॉट इक्वल टू I2। अब उसमें क्या होता है ना, मिनिमा की जो वैल्यू होती है वो 0 नहीं होती, कुछ होती है। ठीक है। ठीक है। जिसे आपने स्टैंडिंग वेव साउंड में भी पढ़ा होगा, या इंटरफेरेंस में भी पढ़ा होगा। ठीक है। ओके। कि जो डार्क पॉइंट होता है या लो इंटेंसिटी साउंड वाला पॉइंट होता है, वहां पे साउंड आता है अगर दोनों सोर्स का साउंड की इंटेंसिटी सेम नहीं है तो। हम्म। ठीक। तो अब यहाँ पे आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछो एक बार फटाफट। क्लियर है। ओके, गुड। इसके बाद हम कुछ चीजें और हैं, जैसे हम यहाँ पे नोट डाल लेते हैं, कुछ पॉइंट्स कर लेते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो जैसे पहला पॉइंट क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ स्लिप, आप लिख रहे हो ना बेटा? हाँ लिख रही हूँ। इफ स्लिप विद इज
double. If if any of, हाँ, if any of slit width is double, किसी एक स्लिट का विद को हम डबल कर दें, दुगना कर दें, तो क्या होगा बताओ? हम्म अब ये होगा कि I1, लेट से आपने I1 को डबल किया ना, I1 की जो, लेट से आपने ब्लेड से कट मारा था, तो उसमें ब्लेड से जो कट की थिकनेस थी वो ऐसी आपने S2 के कंपेरेटिवली उसको डबल थिकनेस कर दिया। उस टाइम ओके। पे आपका जो I1 की इंटेंसिटी होगी बेटा डबल हो जाएगी। देन इंटेंसिटी ऑफ दैट स्लिट बिकम डबल। और जब ऐसा हो जाएगा ना बेटा, तो आप बताओ, डार्क स्पॉट जो मिनिमा इसको बोलते हैं, क्या वहां पे हमको तब जीरो इंटेंसिटी मिल पाएगी? बताओ। नहीं। नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अब एक का इंटेंसिटी 2I0, एक का इंटेंसिटी I0 हो गया। तो हम्म। आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलेंगे, बट डार्क नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? ब्राइटेस्ट ओके। पॉइंट मिलेगा। और ब्राइट, बट हाँ, एक और बात, ब्राइट पॉइंट की इंटेंसिटी जो है वो आपकी 4I0 नहीं रहेगी। जैसे कि अगर हम्म। I1 I2 सेम होते तो 4I0 होती, अगर सेम नहीं है तो 4I0 नहीं रहेगी, इट विल बी चेंज्ड। ठीक है? ओके। बोलो। या। सारी बातें समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो कुछ भी नहीं हो रहा? हम्म। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। चलो, अब मैं देते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टेल यू। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट अ theoretical point that is called fringe width. पता है फ्रिंज विड्थ क्या होती है बेटा? हाँ, वो स्मॉल डी ना। फ्रिंज विड्थ ओके, फ्रिंज विथ। आपने स्कूल में पढ़ा है ना, बी ऑप्टिक्स? नहीं, मतलब आधा पढ़ा था बस। तो आधा क्यों नहीं पढ़ा? उसके छोड़ बाद दिया था? छुट्टी। नहीं, छुट्टी दिया ना। अच्छा, YDC एक्सपेरिमेंट पढ़ा दिया था, पूरा हो गया था? नहीं, उधर से शुरू करना है। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली फ्रिंज विड्थ इज नथिंग, इट इज सिंपल टर्म दैट इज, जैसे आपको पता है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ बच्चों। उस डायग्राम से शायद थोड़ा क्लियरली हो समझ में आएगा, इसलिए डायग्राम दिखा देता हूँ। तब तक मैं ड्रॉ करूंगा। अरे यार, तो हैंग हो गया। एक मिनट, हो गया, आ गया, आ गया। दिख रहा है आपको? तो एक्चुअली में जो सामने की तरफ 2 डायमेंशनली स्क्रीन लगी होती है, प्लेनर स्क्रीन बेटा, तो उसमें आप देखोगे, ये आपको डार्क का एक, डार्क दिख रहा है, एक पॉइंट है ना डार्क। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि दो कंजगेटिव ब्राइट स्पॉट के बीच का जो गैप होता है, जो गैप होता है, जो बीटा से रिप्रेजेंट किया गया है, तो दिस बीटा इज कंसिडर एज फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की ओके। मोटाई। ठीक है? हम्म। अच्छा, अभी फ्रिंज विड्थ की वैल्यू मैंने जैसे कि दो ब्राइट स्पॉट्स के बीच का गैप से निकाली है। आप चाहो तो दो डार्क स्पॉट्स के बीच के गैप से भी निकाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो हाँ। गया कि ईच ब्राइट फ्रिंज और ईच डार्क फ्रिंज की जो थिकनेस है वो सिमिलर होती है, इट इज नॉट वेरिएबल। ठीक है? हाँ। अब लेट्स से हमें फ्रिंज विड्थ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है कि ब्राइट पॉइंट के लिए जो YN होता है, किसी जनरल पॉइंट के लिए, किसी जनरल मैक्सिमा के लिए पोजीशन के लिए फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। तो हमें दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के सबट्रैक्शन ही करने हैं, आई थिंक। क्यों? हम्म। तो दो कंसेक्यूटिव सबट्रैक्शंस, मैक्सिमा के सबट्रैक्शंस कर देंगे, यानी बीटा इज इक्वल टू YN-YN-1 कर दें, तो आई थिंक हाँ, वी विल ठीक है। गेट आर डिजायर्ड वैल्यू। तो इट विल बी लाइक N लैम्डा D/D माइनस विद N-1 lambda D/D. You can see that beta will become lambda D/D. This is fringe width. ओके। Okay? And this is similar for dark and bright fringe both. ठीक है। If you have any doubt, you can ask. Huh?
अच्छा, देयर इज वन मोर टर्म, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, है ना? एंगुलर फ्रिंज विड्थ, बेसिकली एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज दैट थीटा विच इज मेंशन इन द डायग्राम। वो थीटा, एक काम करता हूँ, मैं थीटा नहीं लिखता हूँ इसको मैं कुछ और लिखता हूँ। थीटा एंड प्रीफिक्स में बीटा लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक, थीटा ठीक बीटा, है। दिस थीटा बीटा बिकम्स एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसका वैल्यू क्या होगा? तो it becomes like angle, beta becomes like arc, and capital D becomes like radius. So theta beta will be equal to beta any fringe width upon capital D. Capital D will remove from here, so it will become lambda by d. तो ये आपका क्या आ गया? एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ गया। ओके। बताओ, till now it is clear to you? हाँ। Hmm? Every point is clear, हाँ। huh? Good, 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 हम्म। good. So these points I told you about YDSC. I hope it is clear to you. So let me give you some questions. ओके। Okay. Hmm. Hmm. The first I will give you smaller one. Hmm. So try this question. ऊपर लिख लिया था बेटा आपने, फ्रेंच विद एंगल फ्रेंच विद। हाँ। -65 into 10 to the power -4. Let me check the answer.
65 10 की power minus 4. 6 point, the answer is given 6.5 mm. And when it is taken away 50 centimeter, then what is the answer? Capital D will change by 50 centimeter, I think. Yeah, So in the place of 1.5 meter, you will place 2 2. meter, I think. Yeah. You will get the data. Okay. ये तो हो जाएगा ना फिर. तो हाँ. ये आपका सिंपल, इसको मैं लैम्डा डी बाई डी से करना है आपको. एक बार आपको हम्म. लैम्डा 1+1.5 बाई डी करना है, देन आपको बीटा डैश करना है, तो लैम्डा 2 बाई कैपिटल डी करना है. यू विल गेट द आंसर. ठीक है. Yeah. Okay, now next question I'm going to give you. Hmm. Next question uh, is the next question. In a YDC setup, I resultant at P is 75% of I maximum. Okay, that means P is the null point where intensity is 75% of I maximum, and I maximum is 4 I naught. Okay, if Y, find YP, any position of P point निकालना है आपको. If it is known that sixth maxima lies below and seventh minima lies above point P. It's a good question. Try to solve this question. ठीक है. लास्ट वाली इंफॉर्मेशन n फाइंड करने के लिए है ना. If it is maxima, Y पोजीशन निकालनी है, Y की वैल्यू निकालनी है हमको, उस पॉइंट के लिए. नहीं नहीं. If it is known that sixth maxima lies below it and seventh. That point P is like, if it is known that point P, sixth maxima, अच्छा हाँ, sixth maxima lies below. Sixth maxima यानी कि from that point P, sixth maxima lies below and seventh minima lies above point P. तो जिस पॉइंट की हमें डिस्कशन करना है, वो पॉइंट हमारा सिक्स मैक्सिमा के ऊपर है और सातवें मिनिमा के नीचे है. यही पूछ रहे थे ना.
हम्म। तो पोजीशन उस हिसाब से जज करनी है। बताओ, हो गया? बताएं? मतलब मैंने ढूंढा, लेकिन वो लास्ट वाला यूज कहाँ करना है वो नहीं पता। अच्छा चलो, अच्छा आंसर बताओ पहले क्या है तुम्हारा। अब आए तो लैम्बडा कैपिटल डी बाय 6 स्मॉल डी। देखो मैं बताता हूँ। आपने क्या किया होगा, आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज किया होगा। हम्म। 4 I0 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। फिर आपने इसमें आई रिजल्टेंट को कर दिया होगा 75% ऑफ मैक्सिमा। तो 75% ऑफ मैक्सिमा इज 3I0, है ना? हाँ। तो यहाँ से आपका बेटा आया होगा कॉस डेल्टा 5/2 इज इक्वल टू डी बाय √3/2। बाय 2। हाँ। That can be written as cos pi/6. And when you solve pi/6 when you solve for delta phi, you will get pi/3. 3। The phase difference you got pi/3. And the ठीक है, and the part difference you got uh, delta phi is equal to lambda upon 2 pi delta phi। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा ये आ जाएगा lambda/6। हाँ, टिल हेयर हम्म। में भी यू गॉट द डेटा, है ना? हम्म। अच्छा, ऐसे ऊपर मैंने एक आपको जब डायग्राम दिखाया था यहाँ पे चार्ट ये वाला, तो उसको आप ध्यान से देखा देखा होगा आपने। जैसे यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 है तो मैक्सिमा है। तो यहाँ पार्ट डिफरेंस λ/2 है, फिर मैक्सिमा है। 2 लैम्डा है पार्ट डिफरेंस, तो फिर मैक्सिमा है। फिर पार्ट डिफरेंस λ/2 है तो पार्ट इंटेंसिटी मिनिमा है, 0 इंटेंसिटी है। ठीक, ये हमने देखा था। तो आप देखो ध्यान से, जैसे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, 0 से λ/2 हम पहुंच रहे हैं, तो बीच में हमको और भी पार्ट डिफरेंस मिलेंगे, है ना? लैम्डा हाँ। बाई टू के पहले λ/3 मिलेगा, λ/4 मिलेगा, λ/6 मिलेगा, ऐसे बहुत पार्ट डिफरेंस मिलेंगे। ठीक है, अब लेट्स से मैं यहाँ से कुछ डेटा इधर जाता हूँ, तो उसकी एक इंटेंसिटी होगी यहाँ पे। अब उतना ही डेटा मैं इधर चला जाऊँ तो फिर हमको वही पॉइंट की उतनी ही इंटेंसिटी फिर से मिल जाएगी। क्लियर है? क्लियर है। हाँ, अब जैसे मैं एक बात और देखो आप डायग्राम में, जैसे आप देखो तो ये आपका फर्स्ट मिनिमा है, ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जैसे हमको पता है कि यहाँ पे इंटेंसिटी 0 है और यहाँ पे इंटेंसिटी 4I0 है। तो अब 0 से लेके 4I0 वाली इंटेंसिटी, बाकी सारे पॉइंट जो होंगे बेटा एकदम बीच में लाई करेंगे। ऑल हाँ। इंटेंसिटी पॉइंट्स लाई विल इन बिटवीन देम। हम्म। तो जैसे यहाँ पे सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, वैसे आगे भी ऐसे सपोज करो ये वाला अगर देखें तो मैं देख रहा हूँ कि ये तीसरा मिनिमा है और ये तीसरा मैक्सिमा है, तो यहाँ पे भी सारे पॉइंट्स लाई लाई करेंगे। एज वेल एज यहाँ पे भी सारे पॉइंट लाई करेंगे उस इंटेंसिटी के। ठीक है, हाँ। तो यानी कि जो 75% इंटेंसिटी वाला पॉइंट है वो एक नहीं होगा, समझ गए? वो ऐसे हाँ। मल्टीपल हो सकते हैं। ओके। तो जैसे कि अब हमें पता है कि मैंने आपको अभी बता दिया कि भाई यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है, अभी दिखाया आपको कि यहाँ पार्ट डिफरेंस जो होता है λ/2 होता है। तो हमारा पार्ट डिफरेंस λ/6 आया है, तो λ/6 कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा। हम्म। बोलो, या ऐसे समझो कि cos डेल्टा 5/2 इज √3/2 आया है, तो √3/2 जो वैल्यू होती है वो और किसके लिए आएगी? अच्छा, ये √3/2 प्लस माइनस में आ रही होगी, तो हमें माइनस प्लस से मतलब हमको उससे मतलब यूजली है नहीं, है ना? हाँ। क्योंकि माइनस में भी उतनी वैल्यू मिल जाएगी हमको शायद ना। हाँ। हम्म। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्लस माइनस में कॉस से √3/2 cos 5/6 है, तो आई थिंक cos 150 की वैल्यू भी यही आ जाएगी, -√3/2 आएगी। और वहां रखोगे तो इंटेंसिटी तुम्हें 3I0 फिर से मिल जाएगा, है ना? हाँ। तो यानी कि मतलब कौन कौन से पॉइंट्स पे ऐसा हो सकता है, ये क्वेश्चन है मेरा भी। जैसे पहला पॉइंट λ/6 हो गया, दूसरा पॉइंट कौन सा होगा ऐसा? π/2 प्लस लैम्बडा बाय 6। 5/2 प्लस λ/6। नहीं, π/2 कैसे बोल रहे हो, λ/2 सॉरी, है हाँ, लैम्बडा बाय 2। हाँ, λ/2। तो ऐसे पार्ट डिफरेंसेस के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो ऐसे आएगा λ/6 प्लस λ/2। ठीक है, हम्म। हाँ। अब बट इसको हमें लोकेट करना पड़ेगा इन आवर माइंड। ठीक है, ध्यान सुनना पहले, हाँ। ओके। हाँ। तो जैसे इसको हम लोकेट करें तो जैसे ये वाला क्या है, ये सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच में है। ये पॉइंट कहाँ होगा बेटा? ये पॉइंट होगा फर्स्ट कहाँ? मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में होगा। अब अगर मैं अगला पॉइंट आपसे डिस्कस करूं बच्चे, तो λ/6 प्लस लैम्डा, इसे इसे क्या बोलोगे? इसको लोकेट करो आप।
वो शायद यहाँ कहीं मिलेगा। एक काम करता हूँ, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, वेट अ मिनट। मान लो मुझे इंटेंसिटी जो मिल रही है वो यहाँ कहीं मिल रही है ऐसे, ये। तो ये से ये λ/6 हो गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा हमको, ये नीचे जस्ट इसी को आपने लिखा है λ/6 प्लस λ/2। हम्म फिर आपको पॉइंट यहाँ पर भी मिलेगा वही, λ/6 प्लस लैम्डा। तो अब ये मुझे बताओ कि जैसे इसको लोकेट करते हैं ऐसे कि फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में है, ठीक है। हम्म तो जब भी यहाँ पे λ/2 के साथ जैसे अगला वाला 3 λ/2 आएगा, तो हम बोल सकते हैं हाँ कि वो सेकंड मैक्सिमा और सेकंड मिनिमा के बीच का गैप है, हम्म बीच में आ रहा है। हम्म क्लियर। हम्म अब इसको ध्यान से देखो आप, इसे क्या बोलोगे? इट विल लाई बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मिनिमा, क्या? हाँ ये इसको आप क्या कह सकते हो? फर्स्ट मैक्सिमा एंड सेकंड मिनिमा के बीच में है कि नहीं, बताओ बेटा। हाँ तो अब ऐसे ही सारे बनाते चले जाओ, बस बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी तो छठा सातवां बोला है हम्म। कि 6 मैक्सिमा के बाद और 7 मैक्सिमा के पहले पॉइंट है। तो आप शायद अगर दिमाग लगाओ तो जज कर सकते हो कि जो छठा वाला होगा वो ऐसे होना चाहिए, λ/6 + 6 लैम्डा, क्या? हम्म λ/6 + 6 लैम्डा होना चाहिए। हाँ ये क्या होगा हमारा, बताओ। भाई जब यहाँ पे लैम्डा था तो यहाँ फर्स्ट मैक्सिमा लिखा था, जहाँ पे 6 लैम्डा है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम कि ये सिक्स लाई कर रहा मैक्सिमम है 6th मैक्सिमा सेवेंथ एंड मिनिमम। 7th मिनिमा। तो हमको बस अभी कुछ नहीं करना है, इसी ही पार्ट डिफरेंस को लेके वाई को सॉल्व कर लेना है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6 6 36 37, 37 λ/d। 36, एक मिनट बोल दिया, 37 λ/6 आ जाएगा। लैम्डा आ गया, डेल्टा एक्स आ गया। और फॉर्मूला में क्या आता है, d/d और आ जाता है, तो आंसर ये आ जाएगा। ओके। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ अब एक बात और सुन लो फटाफट से। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे प्लस प्लस किया है। आप ध्यान से देखो तो क्या स्क्रीन, भाई जो हम लोगों ने बात करी है वो पॉजिटिव पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट के ऊपर की बात करी है। तो जो हम्म इंटेंसिटी ये बात कर रहा है वो सेम इंटेंसिटी इस पॉइंट के नीचे भी लाई करेगी, ठीक है। हाँ तो जो जितने भी आंसर्स हमारे आ रहे हैं, अगर हम चाहें तो पार्ट डिफरेंस में प्लस माइनस दोनों डील कर सकते हैं। तो हमारा y का एक आंसर ये भी सही है और y का आंसर ये भी सही है, -37 λ/6। तो जितना ऊपर बनेगा इंटेंसिटी, जितनी दूर सेंट्रल से जितनी दूर ऊपर इंटेंसिटी मिलेगी, उतनी इंटेंसिटी उतनी ही डिस्टेंस पे नीचे मिल जाएगी। ओके। क्योंकि इस सारे डायग्राम्स में अगर देखोगे तो अगर यहाँ से सेकंड मैक्सिमा लेट से 2 λ/d दूर है, तो यहाँ से नीचे भी सेकंड मैक्सिमा 2 λ/d दूर है। हम्म। समझ गए ना? तो जो हाँ पॉइंट जितनी डिस्टेंस पे ऊपर मिल रहा है वही सेम पॉइंट उतनी ही डिस्टेंस पे नीचे भी मिल जाएगा। हाँ तो हमें हमेशा ध्यान रखना हो क्वेश्चन में सॉल्व करते समय कि अबव द सेंट्रल पॉइंट बात कर रहा है कि बिलो द सेंट्रल पॉइंट बात कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, तो हमारे जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो दोनों होंगे। ओके। गॉट इट? या। हाँ, एक मिनट, आई डिड समथिंग रॉन्ग, यू कैन सी आई थिंक। देखो अगर यहाँ माइनस लेमडा करेंगे बच्चे, λ/6 माइनस लेमडा, तो क्या मिलेगा हमको? नेगेटिव। यहाँ माइनस आ जाएगा, हम्म। तो 36 जाएगा इधर, नहीं, -35। 35 आ जाएगा ना शायद। हम्म। तो एक मिनट, कुछ गड़बड़ होगी क्या? एक मिनट, एक मिनट, अच्छा सॉरी, दोनों ही माइनस किया जाएंगे ना फिर। एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ, एक मिनट रुकना। आई शुड राइट लाइक दिस ऑल्सो, माइनस साइन मुझे आगे भी लगाना चाहिए। ओके। ओके। हाँ। हाँ, माइनस आगे भी आएगा, तो आई थिंक आई ओके। कैन से यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। और ऐसे बोल सकता हूँ कि सेम जो पॉइंट्स हैं, सेम पॉइंट वी कैन गेट बिलो, ठीक है। उसमें वो गड़बड़ हो गया था हम्म कि अगर हम नीचे जा रहे हैं तो पार्ट डिफरेंस λ/6 में भी माइनस साइन आएगा ना, हम्म ठीक है।
तो आई होप ये यहाँ तक समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा ऐसे घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। ठीक है, हम्म। तो बस आज के लिए इतना ही है। ठीक है। ओके। हाँ।